Hello, good morning everyone. I am Aishwarya Fartare and we had started with your subject of bookkeeping and accountancy. Now today we'll start with your HSC board textbook. So ये आपका brand new textbook है इस साल का with the new curriculum. Okay, so this is your new textbook. If you do not have the copies of the textbook yet, प्लीज डाउनलोड इट. बेहरे क्लास की वेबसाइट पे टेक्स्ट बुक की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. तो पीडीएफ डाउनलोड करा एंड कीप इट फॉर योर रेफरेंस. ओके, सो यू कैन यूज इट. ओके, सो टुडे द फर्स्ट पॉइंट विच वी विल बी डिस्कसिंग इज योर चेंज्ड करिकुलम. ओके, सो अभी इस साल आपका जो करिकुलम है अकाउंट्स का वो चेंज हो चुका है. योर सिलेबस हैज चेंज्ड. सो वी विल जस्ट डिस्कस इन शॉर्ट विच आर द लेसन्स विच हैव बीन न्यूली एडेड. कौन से लेसन्स न्यूली ऐड हुए हैं और कौन से लेसन्स निकाल दिए गए हैं आपके करिकुलम से. ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. दिस चैप्टर वॉज देयर अर्लियर ऑल्सो. आता पण तो कंटिन्यूड है. So this chapter there is no change. Next is accounts of not for profit concern. हा चॅप्टर जो होता तो आधी चॅप्टर नंबर त्याचा थोडा खाली यायचा. इट वॉज द 10th चॅप्टर अप्रॉक्सिमेटली, बट नाउ इट इज द सेकंड चॅप्टर. But still it was there in the syllabus earlier also. Next is reconstitution of partnership. So reconstitution of partnership, in that you have three parts. One is admission of the partner, second is retirement, and third is death. So these were also there in the old syllabus. Next is dissolution of the partnership firm, bill of exchange. Both these topics were also there. Next part is company accounts. Company accounts madhe there were two parts. Okay, one was issue of shares and the second was issue of debentures. So issue of debentures has been removed from your syllabus and only issue of shares has been continued. Okay, so issue of debentures is no more part of your curriculum. Next is analysis of financial statements. हाँ पण continued lesson है, पहले भी था अभी भी continued है. Next is computer and accounting. This topic was earlier covered in the 11th standard. Now it has shifted to the 12th standard book. Okay, one chapter which has been removed from the 12th standard syllabus is, we had discussed last year, that it is single entry. So single entry पहले 12th standard के curriculum में होता था, but आपने जब पढ़ा तो single entry was there in the 11th standard syllabus. Okay, so this chapter was earlier there in the 12th standard book. Now it is not there. So I hope you have understood कि कौन से chapter पहले से है और कौन से अभी add हुए. Now let us discuss ब्रीफली कि हर चैप्टर में कवरेज क्या होने वाला है हमारा. तो पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, उसमें हम जैसे लास्ट ईयर सोल ट्रेडिंग कंसर्न के या प्रोप्राइटरी कंसर्न के, प्रोप्राइटर के, एक इंडिविजुअल के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे. फाइनल अकाउंट्स मतलब कौन से 3 स्टेटमेंट्स हम बनाते थे. वी यूज्ड टू मेक द ट्रेडिंग अकाउंट, secondly we used to make the profit and loss account, and thirdly we used to make the balance sheet. So these statements are similarly going to be prepared in the partnership final accounts also. So this topic is very familiar to you. Whatever you have done in 11th standard, जो आपने 11th standard में आखिरी चैप्टर में स्टडी किया है, सेम वो कंटिन्यू होगा इधर भी. Okay, next is accounts of not for profit concern. So here again you have final accounts only. Okay, but these final accounts are not related to normal business organizations. What is the difference? So basically, see, you have two types of concerns. Okay, one type of concerns which are mainly working with a profit motive. Okay, profit motive मतलब क्या, उनको पैसे कमाने उस बिझनेस से, वो खुद के बेनिफिट्स के लिए कोई बिझनेस कर रहे, स्वतःच्या फायद्यासाठी बिझनेस केलेला असतो, दॅट इज अ प्रॉफिट मेकिंग कन्सर्न. ओके, सेकंडली यू हॅव नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न. नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न मध्ये काय होतं, इट इज डन विथ अ सोशल इंटेन्शन. ओके, दे आर डूइंग their duties to help their members who are part of that not for profit organization, that is
who have taken the membership of that concern or for other people in the society. So they work for the benefit of the society. So that is about not-for-profit concerns. Again, we'll prepare financial statements only. इथे पण we are going to prepare balance sheet, तो इधर भी balance sheet बनाई जाएगी और इधर income and expenditure account बनता है, profit and loss account नहीं. क्या concept है वो lesson में हम detail में पढ़ लेंगे. Next is reconstitution of partnership. Now reconstitution of partnership, what do we understand from the word? Reconstitution का मतलब क्या है? कुछ तो reframing होता है partnership में. अब reframing कैसे होगा? Say there are 3 people who are there in the partnership, A, B and C. Okay? Now you want to take another person D into the business. तुम्हाला नवीन partner admit करायचा है. You want another person to join in. So that is admission. Okay? You want C to retire from the business or you decide that C is going to retire from the business. Retire मतलब क्या? वो firm छोड़ के जाने वाला है, A and B business continue करने वाले. तो C is going to go out. So A and B will continue the business. That process is called as retirement. Similarly, death. So if instead of retiring, C would have died. Okay? So C would have died, then what would have happened? That would lead to death of partner. So in all of the 3 cases which we discussed, what was there? पहले फॉर्म था ABC में, एडमिशन हुआ तो ABCD का फॉर्म बनेगा, रिटायरमेंट हुआ तो A और B ही बचेंगे फॉर्म में, डेथ हुआ तो भी A और B ही बचेंगे फॉर्म में. So what is happening? This is reconstitution. The firm is being rearranged or reframed. So that is reconstitution of partnership. अभी इसमें क्या करना पड़ता है? तो सिंपल, अभी न्यू पार्टनर आया तो पहले पुराने फर्म का A, B, C जब 3 पार्टनर थे तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1 रहेगा. D आने के बाद D को भी थोड़ा प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा, करेक्ट? सो A, B, C, D विल कंटिन्यू टू शेयर द प्रॉफिट. सो दिस इज अ चेंज. ओके, सो ये चेंज का एडजस्टमेंट हमको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन द एडमिशन केस. सिमिलरली रिटायरमेंट और डेथ में क्या होता है कि एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है फर्म, तो एक पार्टनर जब छोड़ के जा रहा है तो अगेन व्हाट हैपेंस इज कि से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, या जो छोड़ के जा रहा है से सी इज लीविंग द फर्म तो ही मस्ट हैव इन्वेस्टेड सर्टेन कैपिटल इनटू द फर्म, तो उसको वो कैपिटल लौटा देना पड़ेगा बिकॉज ही इज गोइंग आउट ऑफ द फर्म, करेक्ट? सो दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन और उसके एडजस्टमेंट्स हमको ये 3 चैप्टर में सीखने हैं. नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कब होता है? जब मे बी पार्टनरशिप के सब पार्टनर्स को लगता है कि हाँ अभी हमको पार्टनरशिप बंद कर देनी है. कोई कोई पार्टनरशिप ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं. लेट अस से एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, 2 बिल्डर एक साथ आए हुए हैं फॉर डूइंग दैट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. तो जब वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा. तो दैट टाइम डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस. क्या हो जाएगा वो? तब जितने भी पार्टनरशिप के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रहेंगे वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जितना भी कैपिटल रहेगा वो लौटाया जाएगा. ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं जो डिसोल्यूशन में हमको करने पड़ते. नेक्स्ट चैप्टर विच यू हैव इज बिल ऑफ एक्सचेंज. सो व्हाट डू वी डू इन बिल ऑफ एक्सचेंज? थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या, कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या होता है. ओके, सो लेट अस से देयर आर 2 पीपल who are transacting with each other. So say A has sold goods to B. Okay, so A ने B को goods sell किया है. Now B was supposed to pay money to A, but he did not pay the money immediately. Instead, what he did, he gave a promise टू पे एट अ फ्यूचर डेट. हमने देखा था क्रेडिट ट्रांजैक्शन था. ओके, सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में इमीडिएट पेमेंट होता है क्या? तो पेमेंट नहीं होता है. व्हाट इज देयर? देयर इज नो इमीडिएट पेमेंट, देयर इज अ प्रॉमिस टू पे एट अ फ्यूचर डेट. ओके, सो बी प्रॉमिस्ड ए टू पे एट अ फ्यूचर डेट. सो नाउ इज दिस प्रॉमिस इन अ रिटन फॉर्म? नो, ओरल कमिटमेंट बी ने दिया था. अभी ए वो ओरल कमिटमेंट लेके चुप बैठ सकता है, बट देन ही हैव टू अज्यूम
कि पैसे देगा क्या, अगर रिटन प्रूफ नहीं है तो कोई कोर्ट में एक्शन होगा क्या, तो हो सकता नहीं हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स हो गए। इसलिए क्या होता है, ए बी को एक रिटन ऑर्डर भेज देता है। क्या भेज देता है, ए बी को एक रिटन ऑर्डर। ओके, so A sends a written order to B that you are supposed to pay say 10,000 rupees to me on 30th of May. Okay, so ऐसा A ने ऑर्डर भेजा है B को। Now what will B do? B ने तो प्रॉमिस किया है, बट A बोलेगा नहीं, मेरे को लिख के दो कि आपने प्रॉमिस एक्सेप्ट किया है, तो दैट ऑर्डर विल बी एक्सेप्टेड बाय B। तो ये जो रिटर्न ऑर्डर है वो B क्या करेगा, B ये एक्सेप्ट करेगा। ओके, सो B विल एक्सेप्ट दैट ऑर्डर विच इज गिवन बाय A। तो A जब ये ऑर्डर देता है और B ये जब ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, तो ये कौन से डॉक्यूमेंट पे होता है, तो दिस इज डन ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका क्या मतलब है, ये जो A रिटन ऑर्डर दे रहा है ना, दैट लेटर फॉर्मेट और दैट ऑर्डर इज कॉल्ड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, सो A के लिए जब वो ऑर्डर दे रहा है तो B से उसको पैसे मिलने वाले, he is going to receive money from B, so it becomes a bill receivable for A. Similarly, B is going to pay money, hence this bill of exchange becomes a bill payable for B. So this is the topic which we are going to study, that is bill of exchange. One will receive the money and the other person will pay the money. Okay, so here A is going to draw a bill of exchange and B is going to accept the bill of exchange. तो ये सब प्रोसेस में कौन से जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने पड़ते हैं, कौन से लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, ये सब हम सीखेंगे कौन से टॉपिक में, इन दिस टॉपिक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आई होप आई एम क्लियर विद द कंसेप्ट। नेक्स्ट होता है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। नाउ व्हाट इज इशू ऑफ शेयर्स, अभी कोई भी बिजनेस चलाने के लिए बिजनेसमैन नीड्स टू इन्वेस्ट मनी इनटू द बिजनेस, करेक्ट। सो द मनी इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। हमने लास्ट ईयर भी देखा था, हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे या लाइबिलिटीज के टॉप में कैपिटल लिखते थे। व्हाट वाज दैट, दैट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस। नाउ व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म्ड, देयर आर वेरियस पीपल्स हु आर कंट्रीब्यूटिंग मनी टुवर्ड्स द कंपनी, और कंपनी उनको एक्सचेंज में क्या देता है, कंपनी उनको एक्सचेंज में कंपनी के शेयर्स देते हैं। ओके, सो डू यू गेट द प्रोसेस, सी यू नो, सिम्पली वी कीप अ फिक्स्ड डिपॉझिट इन द बँक। आपण बँकमध्ये एफडी ठेवली, बरोबर, आपण एफडी ठेवली बँकमध्ये, तर काय होतं, वी हॅव इन्व्हेस्टेड मनी इन टू द बँक, आपण बँकला आपले पैसे देतो आणि बँक त्याच्या एक्सचेंजमध्ये आपल्याला काय देतं, एक फिक्स्ड डिपॉझिट रिसीट देतं। तुम्ही तुमच्या घरी बघितली असेल, ओके, नसेल बघितली ते आई बाबांना विचारा, एफडी रिसीट आहे का, ते तुम्हाला दाखवतील। ओके, सो व्हॉट इज दॅट, यू गिव्ह मनी टू द बँक, बँक गिव्स यू अ फिक्स्ड डिपॉझिट रिसीट। ह्या सिमिलर कन्सेप्ट मध्येच कंपनीचं ऑपरेशन होतं। काय होतं, पीपल गिव्ह मनी टू द कंपनी, कंपनी गिव्स शेअर्स टू द पीपल। ओके, फक्त यात डिफरन्स काय असतो, तुम्ही बँकची एफडी घेतली म्हणजे तुम्ही बँकचे ओनर बनत नाही, ओके, पण कंपनीचे शेअर्स घेतले तर दॅट शेअर्स गिव्ह यू द राईट ऑफ ओनरशिप ओव्हर द कंपनी। सो यू बिकम द ओनर्स ऑफ द कंपनी वन्स यू बाय द शेअर्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंपनी। ओके, सो हे शेअर्स कंपनी इश्यू करताना किंवा कंपनी पीपलना देताना काय काय एंट्रीज होतात, ट्रांजैक्शंस कशी होतात, ऑल विल बी डेल्ट विथ इन दिस लेसन। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे कि कंपनी जब शेयर्स देती है लोगों को, लोगों से पैसे लेती है, तो कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैसे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ऑल विल बी डेल्ट विथ इन कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। लास्टली यू हैव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। Both these topics are basically theoretical topics. Computer in accounting म्हणजे simply computerशी related aspects, practical aspects related to the subject of accounts, that will be covered in it. आणि analysis of financial statements म्हणजे last lecture जब हमने discuss किया था, हमने उसमें देखा था we had last two functions of accounting, that is reporting and interpretation, correct?
डू यू रिमेंबर द इंटरप्रिटेशन पार्ट? ओके, सो त्याच्यात काय होतं, इंटरप्रिटेशन मध्ये यू आर प्रिपेअरिंग वेरियस स्टेटमेंट्स, कॅश फ्लो स्टेटमेंट. सिमिलरली यू आर युझिंग वेरियस रेशोज, net profit ratio, gross profit ratio. We had compared profit, profitability. Do you remember? नसेल तर लास्ट लेक्चर परत एकदा रिविजिट करून यू कैन गो थ्रू इट. सो तोच पार्ट डिटेल में वही पार्ट हमको यहाँ कवर करने को मिलने वाला है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. तो ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका लास्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग था. बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का लास्ट पार्ट जो था 6th, इंटरप्रिटिंग और एनालिसिस, उसका डिटेल्ड पार्ट हमको इस टॉपिक में कवर करने को मिलने वाला है. ओके, सो दैट वाज अबाउट ऑल द टॉपिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 12th. ओके, सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के लिए अगर हम मार्क्स वेटेज देखें तो ओल्ड सिलेबस में मार्क्स वेटेज कैसा था ये मैं आपको पहले बता देती हूँ. तो फर्स्टली पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का सम जो आता था, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द सम. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें एक एक दो दो मार्क्स के हर टॉपिक में से आते थे क्वेश्चंस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सम. सो हियर द सम यूज्ड टू बी ऑफ 15 मार्क्स. देन accounts of not for profit concern में this sum used to be of 12 marks. सिंगल एंट्री जो होता है इधर सम आता था 8 मार्क्स का. बाकी जो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये तीनों मिलके ऑप्शन में एक ही सम आता था, दैट यूज्ड टू बी ऑफ 10 मार्क्स. नेक्स्ट डिसोल्यूशन और शेयर्स, ये जो तो टॉपिक्स है उसका ऑप्शन में सम आता था 10 मार्क्स. बिल ऑफ एक्सचेंज अगेन इट यूज्ड टू कम फॉर 10 मार्क्स. और बाकी के मार्क्स जो होते थे दोज वर रिजर्व फॉर ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो ये मार्क्स वेटेज था ओवरऑल सब चैप्टर्स का इन द ओल्ड सिलेबस. सो मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देती हूँ कि ये जो मार्क्स वेटेज मैंने बताया है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द सम्स. ओके, सम्स पार्ट ऑब्जेक्टिव में से नहीं है. ऑब्जेक्टिव एक एक दो दो मार्क के आ जाते हैं, वो ठीक है. ठीक है, तो इस बार अभी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो जैसे हमको पहले मिल रहा था कि फाइनल अकाउंट्स जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो है और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो पहले भी कंपलसरी क्वेश्चन के लिए आता था, अभी भी ऐसा ही अज्यूम्ड है कि वो कंपलसरी क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू डेफिनेटली होगा. अभी जो आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा ये एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट, ये जो 3 चैप्टर्स है इसमें क्या होता था, बच्चे एडमिशन पढ़ लेते थे, रिटायरमेंट, डेथ पढ़ते ही नहीं थे. ठीक है, वो दोनों ऑप्शन में छोड़ देते थे क्योंकि एडमिशन का क्वेश्चन आया वही सॉल्व करेंगे. मैक्सिमम टाइम्स आता था एडमिशन का क्वेश्चन आएगा ही और रिटायरमेंट और डेथ में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, और इसमें भी ऑप्शन था कि तीनों में से मतलब इन शॉर्ट एक सॉल्व करना है. तो व्हाट मोस्ट पीपल यूज्ड टू डू इज सॉल्व द एडमिशन सम. सिमिलरली डिसोल्यूशन एंड शेयर्स में भी लोग पहले ही चूज कर देते थे कि हम एक टॉपिक टच ही नहीं करेंगे. सपोज शेयर्स है तो वी विल नॉट टच द टॉपिक ऑफ शेयर्स एट ऑल. शेयर्स डिबेंचर्स छोड़ दिया, डिसोल्यूशन कर लेते थे, या उल्टा कर लेते थे, शेयर्स कर ले, डिसोल्यूशन करते ही नहीं थे. तो दिस स्ट्रेटेजी माइट चेंज दिस ईयर. सो जो ये लेसन के ऑप्शन है ना पिक्यूलियरली, ये शायद हट सकते हैं, और ऐसे अजम्पशन आ रहा है जो डिस्कशंस चल रहे हैं मे बी, तो उसमें से ऐसे लग रहा है कि लेसन के जो प्रोमिनेंट ऑप्शन है वो हट जाएंगे, और जो लेसन मतलब इन शॉर्ट आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सब लेसन्स जो है वो स्टडी तो करने पड़ेंगे. ऐसे नहीं होगा कि एक लेसन किया तो दूसरा छोड़ दिया, दैट वोंट बी पॉसिबल फ्रॉम दिस टाइम. सो ये मैं आपको क्यों एम्फसाइज करके बता रही थी कि आपके सीनियर्स होंगे वो सलाह देते रहते हैं, आपको सजेशंस देते रहते हैं, अरे अकाउंट्स के तो है 6-7 लेसन बट करने पड़ते, 4-5 लेसन कर दिए हो गया, पास हो जाएंगे. ये नहीं है. ठीक है, अकाउंट्स का जो आपको टारगेट है वो हमेशा टारगेट रखना चाहिए फॉर 100 मार्क्स इटसेल्फ. सो 100 मार्क्स के लिए आप टारगेट कर रहे हो. अभी सिलेबस भी कम हो चुका है, जैसे मैंने आपको बोला सिंगल एंट्री तो जा चुका है. ओके, सो सिलेबस जब कम हो गया है तो आपको करने को सब लेसन्स पॉसिबल है. ओके, सो व्हेन इट इज पॉसिबल फॉर यू, डिबेंचर्स हट गया है तो 2 टॉपिक्स ही चले गए ना, तो आपको और इजियर करिकुलम बन गया है. तो दैट डजंट मीन दैट यू शुड कीप थिंग्स इन ऑप्शन. यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, यू हैव टू स्टडी 100%, और इतना सीरियसनेस आपके अंदर से आना चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है. इसलिए मैं आज आपको सब ओपनली बता रही हूँ कि क्या हो सकता है. तो यू हैव टू फिगर आउट एंड यू हैव टू थिंक फॉर योरसेल्फ कि आप कितने सीरियस रहोगे
when you are studying accounts. Okay, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बोल दिया था कि अकाउंट्स में 100 मार्क्स स्कोर करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बट यू हैव टू रिलीजियसली do 3-4 things. One is be very very attentive for the lectures. Secondly, you have to practice the sums which we are solving. क्लास मध्ये केलं, घरी केलं, you have to continue to practice it. You have to do time to time revisions of the topics which you have done. And lastly, which we will be doing, I will be doing for you completely, is paper solving. Okay, so आधीचे आपण past almost 10 papers solve करणार आहे in the class itself. So what will happen, that will give you a confidence कि आपको सब आ रहा है. Okay, so that is very very helpful for the students, which has been observed in the past years also. So this was about the syllabus of the 12th standard HSC board, the new curriculum which is introduced this year. एंड मार्क्स वेटेज के लिए मैंने जैसे आपको बोला कि आपको ये ध्यान में रखना है कि इस साल बहुत सारे ऑप्शन नहीं रहेंगे, तो यू हैव टू स्टडी सीरियसली. आपको हर चैप्टर में इक्वल इंपॉर्टेंस देके, इक्वल अटेंशन देके पढ़ना है और सब अच्छी तरीके से कवर करना है. ओके ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे. अब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, मेरे को बहुत स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि थ्योरी के टॉपिक्स या थ्योरी के सब्जेक्ट्स कब चालू होने वाले हैं. तो पीपल हैव बीन आस्किंग मी अबाउट इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी, ये सब कब चालू होने वाला है. तो आपके लिए स्पेशली मैं मेरा नेक्स्ट सेशन कंडक्ट कर रही हूँ. उस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हमारा पेपर राइटिंग का पैटर्न या व्हाट इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन फॉर थ्योरी पेपर्स. ओके, सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको स्टडी करने से पहले ये पढ़ना, क्योंकि सी व्हेन यू आर रीडिंग द टेक्स्ट बुक, आपको कोई जजमेंट नहीं है, सब पैराग्राफ फॉर्म में दिया रहता है, आप पढ़ते जाते हो. ओके, एंड मे बी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू मे स्टार्ट फीलिंग कि आपको सब कंसेप्ट्स आते हैं, आपको सब थ्योरी पता है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपको उसमें से आंसर क्या लिखना है ये समझ ही नहीं रहा है. तो अगर आपको आंसर क्या लिखना है ये समझ नहीं रहा है, तो पूरा टेक्स्ट बुक 10 बार पढ़ के आपको कोई हेल्प नहीं होने वाली, राइट. So I am going to teach you right on the first day itself how to present your theory paper. तो आपको सबसे पहले दिन ही क्या सिखाया जाएगा कि आपको आपका थ्योरी पेपर का प्रेजेंटेशन कैसे रखना है, आंसर्स कैसे लिखने हैं, उसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, ताकि जब आप लेसन पढ़ोगे, इधर से सीखोगे, आप खुद भी पढ़ोगे, तो आपके माइंडसेट में उसका फ्रेम रेडी रहेगा कि मेरे को ये जो पैराग्राफ्स मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूं उसको मेरे को अरेंज करना है, ये जो मैम ने बताया गया है उस फॉर्मेट में. ओके, सो नेक्स्ट सेशन, टुमारो सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द बेस्ट प्रेजेंटेशन फॉर थ्योरी पेपर्स, और आइडियली आपको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, आपको थ्योरी में इससे स्कोर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मार्क कैसे एडवांटेज होगा. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि थ्योरी सब्जेक्ट्स भी स्कोरिंग बन सकते हैं. कब बन सकते हैं? व्हेन यू कैन राइट देम वेल, व्हेन यू कैन present your ideas properly. Okay, so tomorrow's session is very very important. Do not miss the session. If you have other friends also who are scared of theory subjects, who do not know, who do not understand कि कितना कंटेंट लिखना है, क्या क्या आंसर में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, तो उन सबको बोलिए कि ये सेशन कल सेम टाइम पे हमारे ही टाइम स्लॉट में कंडक्ट होने वाला है. सो आई विल बी कंडक्टिंग द लेक्चर फॉर बेस्ट प्रेजेंटेशन फॉर थ्योरी पेपर्स. ओके, इसी तरह आपको स्टडी में हेल्प करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो लेक्चर था हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, वो भी कल हो चुका है. तो आप में से जिन जिन ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज आप ऊपर जो आई बटन दिया गया है वीडियो के, तो वो क्लिक करके इमीडिएटली वो लेक्चर भी देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको समझ जाएगा कि अकाउंट्स में एक्चुअली आपको स्ट्रेटेजिकली स्टडी कैसे करना है, ताकि आप वो बार बार रिपीटेटिवली, जैसे मैंने बोला है, आप रिवाइज कर पाओ. ओके, तो हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली जो मंडे को सेशन अपलोड हुआ था कल, वो आपको जरूर देखना है. नहीं देखा होगा तो इमीडिएटली जाके इस लेक्चर के तुरंत बाद आप वो देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है व्हेन वी स्टडी अकाउंट्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन. इफ यू हैव लाइक्ड इट, अगेन डू लाइक इट.
It is about the curriculum of your HSC board. So जिन जिन friends को चाहिए उनको भी आप guidance दे सकते हो, उनको भी ये lecture की link forward कर सकते हो. Okay? So thank you so much for listening patiently. Have a good day.